Hello students, beta in this video we are going to study about our next type of numericals, type D. Unit 6th, gravitation, type D. Type D is related with variation of small g with height ਦੇ ਨਾਲ small g ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਹਾਈਟ, ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਔਨ ਜੀ, ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਹਾਈਟ ਜਾਂ ਐਲਟੀਟਿਊਡ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣੇ ਸੀ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਬਾਈ ਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਅਪੋਨ ਆਰ ਪਲਸ ਐਚ ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੇ ਸੀ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਅਪੋਨ ਜੀ 1 ਮਾਈਨਸ 2h ਬਾਈ ਆਰ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ? ਵੈਨ ਹਾਈਟ रेडियस ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਕ h इज इक्वल टू r ਹੋਵੇ, h इज इक्वल टू 4r ਹੋਵੇ, h इज इक्वल टू 3r ਹੋਵੇ, h इज इक्वल टू r/2 ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਈਟ ਐਂਡ ਰੇਡੀਅਸ, ਹਾਈਟ ਇਜ਼ ਲਾਰਜ, ਜਦੋਂ ਹਾਈਟ ਲਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਵੈਨ ਹਾਈਟ ਅਰਥ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਰਥ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ 6400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈਟ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਈਟ ਮੀਟਰਸ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। 6400 ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਜੀ? ਜੀ ਇਜ਼ acceleration due to gravity, acceleration due to gravity at surface. G dash acceleration due to gravity at height h, है ना। h height ਤੇ acceleration due to gravity। अच्छा, जी डैश ख्याल रखियो इसका। जी डैश बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एच हाइट ते है, मतलब कई क्वेश्चन आएंगे जिस थोड़ा कहा जाएगा भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन्ने % रिड्यूस किन्ने हाइट ते होएगी, किन्नी भी इन्ने % घट गई, दसो किन्नी हाइट होएगी। मैं क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन दे विच भी थोड़ा समझावांगा। कई क्वेश्चन आएगा भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी reduces to 36% like this, भी घट गई 36% घट गई। बेटा जिन्नी घट गई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ क्वेश्चन सॉल्व करना। जे 36% घट गई तो बच किन्नी गई? कहा गया होगा भी हाइट फाइंड करो, भी 36% जी रिड्यूस होगी, किन्नी हाइट ते रिड्यूस होएगी। वो बेटा 36% घट गई तो रह किन्नी गई? 100 चो माइनस कर लिया करो, 64% रह गई, है ना। सिर्फ 64% लैफ्ट बच गई। बची हुई वैल्यू नाल सॉल्व करना है, रिड्यूस हुई वैल्यू नाल सॉल्व नहीं करना क्वेश्चन। इस गल का खास ख्याल रखियो ये क्वेश्चनों दे विच। जिहड़ी वैल्यू जी दी रिड्यूस होगी उस नाल क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना। तुसी मतलब जी डैश ये नहीं लेना भी जी डैश इज इक्वल टू, है ना, जी माइनस 36% ऑफ जी। समझ गए? या 2 मिनट, मैं कन्फ्यूज़ ना हो, मैं थोड़ा समझा रहा, वेट करो वेट करो। मैं थोड़ा कहने का मतलब यह है भी जिहड़ी वैल्यू घट गई ਉਹਦੇ ਨਾਲ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना। घट के जो वैल्यू बच गई, जो वैल्यू लैफ्ट है, जो बची हुई वैल्यू है, दैट इज द वैल्यू ऑफ जी डैश।
समझ गए। ਆਪਾਂ ਇਹ क्वेश्चन 36% ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ क्वेश्चन ਕਿੰਨੇ % ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ? 64% ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। G dash is acceleration due to gravity left at height h. G dash is h height ਤੇ ਜਿਹੜੀ acceleration due to gravity ਬਚ ਗਈ ਉਹ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਘਟ ਗਈ ਉਸ ਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਘਟੀ ਹੈ 100 ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਬਚ ਗਈ। ਬਚੀ ਹੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਬੇਟਾ, ਸਮਝ ਗਏ? ਘਟੀ ਹੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਬਚ ਗਈ ਬਚੀ ਹੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਦੋਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਦੋਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਹਾਈਟ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਫ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਲਾਰਜ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਹਾਈਟ ਰੇਡੀਅਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਬਾय ਸਮॉल ਅਮਾਊਂਟ, ਡਿਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਬਾय ਸਮॉल ਅਮਾਊਂਟ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੇਗੀ ਫਿਰ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਘਟੇਗੀ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਲੈਫਟ, ਜਿੰਨੀ ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਬਚ ਗਈ ਐਚ ਹਾਈਟ ਤੇ ਉਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟਾ। ਕਲੀਅਰ? ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। स्टेटमेंट चेक कर दें बेटा पहला। अज्यूमिंग द अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ यूनीफॉर्म डेंसिटी, कहते मान लो अर्थ स्फेरिकल है। हाउ मच कुड अ बॉडी वे एट अ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ? हाइट लेनी है अर्थ के रेडियस के इक्वल, उत्थे वेट फाइंड आउट करना है कितना होएगा। इफ इट्स वेट ऑन द सरफेस 250 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, कहते अगर सरफेस ते वेट 250 न्यूटन है, हाइट ते वेट कितना होएगा? एट द सरफेस वेट 250 न्यूटन है, एट अ हाइट एच इज इक्वल टू एच कितनी लेनी है बेटा? आर, उत्थे वेट कितना होएगा? तो क्योंकि जी एच है ये बेटा आर दे कंपैरिजन च है, असी आ फार्मूला यूज़ करो, एवें यूज़ करो, जी डैश बाई जी आर स्केयर अपॉन आर प्लस एच द स्केयर, आर स्केयर अपॉन आर प्लस एच की वैल्यू आर पुट की, आर स्केयर अपॉन 2r द स्केयर 4r स्केयर, आर स्केयर नाल आर स्केयर कट गया 4। ठीक है, इधर लिख देना बेटा मैं जी डैश बाई जी 1/4 आ गया, तो देयरफॉर जी डैश आ गया बेटा 1/4 जी। दोनों पासे एम नाल मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी इधर भी, इत्थे एम जी की वैल्यू पुट कर दो। सरफेस ते वेट कितना वेट है बेटा? सरफेस ते 250 न्यूटन आ सीगा, 250 न्यूटन पुट करता, डिवाइड कर दो, डिवाइड करके 62.5 न्यूटन आ जाएगा एम जी डैश। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 21। बिल्कुल आसान है बेटा। सरफेस ते वेट दिता हुआ है, किसी भी बॉडी का वेट सरफेस ते, हाइट ते वेट कढ़ना है। आप एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रैविटी हाइट वाला फार्मूला लगाया, वैल्यू पुट की एच की, सॉल्व किया, जी डैश आ गया अपने को 1/4 जी। दोनों पासे एम ना मल्टीप्लाई कर देंगे, वेट का फार्मूला बन जाएगा। कर सकते हैं ना दोनों पासे एम ना मल्टीप्लाई करके वेट का फार्मूला बन गया। दैट मीनस एम जी डैश इज इक्वल टू 1/4, एम जी डैश इज इक्वल टू 1/4 एम जी, है ना। एम जी की वैल्यू सरफेस से कितनी है? 250 पुट करती, रिजल्ट आ गया। क्लियर? सो नाउ क्वेश्चन नंबर 22।
ओके मैं रिफल चेंज कर ला बेटा, पेन दा रिफल खत्म हो चुका है। यस, क्वेश्चन नंबर 22 बेटा, एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस, एट व्हाट हाइट, हाइट फाइंड आउट करनी, above the earth's surface does the force of gravity decreases by 1%, means acceleration due to gravity decreases by 1%, g dash मतलब 1% डिक्रीज होएगी, डिक्रीजेज बाय 1%, 1% इज अ स्मॉल डिक्रीज, स्मॉल अगर जी ਦੀ ਵੈਲਿਊ स्मॉल डिक्रीज ਹੋਵੇ जी ਦੀ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ ਸਰਫੇਸ ਤੇ, ਲੈਟ ਵੈਲਿਊ ਐਟ ਸਰਫੇਸ ਜੀ, ਸੋ ਵੈਲਿਊ ਐਟ ਹਾਈਟ, ਇਸ ਚੋਂ ਇਹਦਾ 1% ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੋ, ਜੀ ਚੋਂ ਜੀ ਦਾ 1% ਘਟਾ ਦੋ, जी -1/100 जी, एलसीएम लेके आ जाएगा 99/100 जी, मतलब जी डैश आ गई है बेटा, बहुत घट डिक्रीज हुआ है। ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ जी डैश। समझ आ गया भी सरफेस ते जी की वैल्यू इन्नी है एंड हाइट ते इस वैल्यू नालों 1% वैल्यू घट गई, इस जी का ही 1% कढ़िया, वो जी चो घटाता। ठीक है, अच्छा हम फार्मूला तो थोड़ा ऑलरेडी मैं दस चुका भी ये डिक्रीज काफ़ी स्मॉल डिक्रीज है, 1% डिक्रीज होया, इट इज़ स्मॉल डिक्रीज, स्मॉल डिक्रीज है तो फिर फार्मूला थोड़ा पता ही है भी केड़ा चूज़ करना है ना। तो आप फार्मूला चूज़ करेंगे जी डैश बाई जी 1 - 2h/r, जी डैश की वैल्यू पुट कर दो बेटा 99/100 जी, जी नाल जी कट्टिया जाएगा, 2h/r उधर ले जाओ, 99/100 उधर ले जाओ, 2h/r इधर आके प्लस का हो गया, 99/100 उधर आके माइनस का हो गया, एलसीएम ले लो, वन बाई 100 तो एच आ जाएगा 1/100, आर ऊपर 2 नीचे, समझ गए बेटा, आ वाला आर ऊपर 2 नीचे, आर आपां नूं पता ही है बेटा किन्ना 6400 किलोमीटर्स ले लो, एच इज इक्वल टू 32 किलोमीटर आ गया, मतलब 32 किलोमीटर की हाइट पर जाके जी जी डैश है 1% डिक्रीज हो जाएगी, है ना, 32 किलोमीटर की हाइट पर जाके जी डैश 1% डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ਆਪਾਂ ने देखो क्वेश्चन च मैं थोड़ा जी चीज़ उरे समझाई सी उही चीज़ है बेटा, उरे 1% डिक्रीज होगी तो जिन्ने परसेंट डिक्रीज होगी 1% डिक्रीज होगी, है ना, लाइक 1/100 ऑफ जी ये डिक्रीज होगी, असी किन्नी डिक्रीज होगी ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं क्वेश्चन सॉल्व करना, जिन्नी बच गई, है ना, किन्नी बच गई बेटा, जी चों 1% घटा दो 99% बच गई, है ना, डिक्रीज किन्नी हुई बेटा, डिक्रीज 1%, लैफ्ट किन्नी बच गई, किन्नी बच गई 100 चों 1% घटा दो 99% बच गई, जो वैल्यू बच गई मतलब जी डैश इज 99/100 जी, है ना, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ ਸੋल्व ਕੀਤਾ ਐਵੇਂ भी सॉल्व कर सकते हैं भी डिक्रीज किन्नी हुई 1%, बच किन्नी गई 99%, जो बच गई ਉਹਦੇ ਨਾਲ क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो डिक्रीज होगी ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं क्वेश्चन सॉल्व करना, जो बच गई, बची हुई वैल्यू किवें फाइंड करोगे 100 चो डिक्रीज वाली माइनस कर दिया करो भी किन्नी डिक्रीज हुई वो 100 चो माइनस करके ये फाइंड आउट कर लिया करो भी किन्नी बच गई, वो बची हुई वैल्यू नाल सॉल्व कराया करो, एवें सॉल्व करना एवें सॉल्व कर लियो जी, एवें सॉल्व करना एवें सॉल्व कर लो,
ठीक है बेटा, समझ गए। बस इन्हां क्वेश्चनों 'ਚ ਇਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ है ना। बच्चे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ 1% ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 1% ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗਾ, 99% ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਬਚ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ। यस, क्वेश्चन नंबर 23, दो पार्ट्स है बेटा। एट व्हाट हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, हाइट फाइंड आउट करनी है। डज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फर्स्ट पार्ट है रिड्यूसेस टू 64%, एंड सेकेंड पार्ट है रिड्यूसेस बाय 64%। दोनों पार्ट्स च फर्क दसो। फर्स्ट पार्ट च उन्होंने कहा भी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसेस टू 64%, इत्थे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसेस बाय 64%। 2 ते बाय नाल बहुत फर्क पै गया क्वेश्चन। ਇਹਦਾ मीनिंग ये भी रिड्यूस होके 64% रह गई, 64% रह गई, रिड्यूस होके रिड्यूसिस टू रिड्यूस होके 64% रह गई। जिन्नी हैगी सी सरफेस ते है ना, उसका 64% रह गई रिड्यूस होके। ਇਹਦਾ मतलब है 64% नाल रिड्यूस होगी, 64% घट गई तो रह किन्नी गई बेटा, लैफ्ट किन्नी होगी बोलो। 64% रिड्यूस होगी तो लैफ्ट किन्नी किन्नी बची है, 100 चो माइनस कर देंगे, 36% रह गई। ये मीनिंग है, दोनों च फर्क है बेटा, है ना। इसका मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसिस टू 64%, ਇਹਦਾ मीनिंग भी रिड्यूस होके 64% बच गई, लैफ्ट 64% बच गई। ਇਹਦਾ मतलब है रिड्यूसिस बाय 64%, 64% नाल घट गई। एक घट के ਇਹਦਾ मतलब है घट के डिक्रीज होके 64% रह गई। ਇਹਦਾ मतलब है 64% नाल डिक्रीज हो गई, 64% डिक्रीज हो गई तो बच किन्नी गई, 36%। दैट मीनस इस च तुसी क्वेश्चन सॉल्व करोगे 64/100 जी, ये क्वेश्चन तुसी सॉल्व करोगे 36/100 जी। अच्छा, दोनों च डिक्रीज लार्ज है, 64% भी लार्ज है, 36% भी लार्ज है, देयर इज लार्ज डिक्रीज। ਇਹਦਾ भी तो तुसी जी डैश का फार्मूला आ यूज़ करोगे बेटा, r² अपॉन r प्लस h का स्क्वायर। इस च भी अगर डिक्रीज स्मॉल होवे लाइक 1% हो गया, 2% हो गया, 5% हो गया, 6% हो गया, है ना। अगर डिक्रीज स्मॉल है फिर तो फार्मूला यूज़ होएगा 1 माइनस 2h/r वाला। बट अगर डिक्रीज लार्ज है लाइक 36%, 64%, फिर फार्मूला यूज़ होएगा। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ देखो जी डैश की वैल्यू पुट, इतों जी डैश बाई जी बेटा उरों जी डैश बाई जी कितना आ गया, 64/100 आ गया। पूरे पुट कर दो 64/100, r अपॉन r प्लस h का स्क्वायर कॉमन ले लिया, इतने पुट कर दो। उरों आ गया बेटा जी डैश बाई जी 36/100, है ना। ये पुट हो जाएगा 36/100, r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लो, है ना। 64 का स्क्वायर रूट 8, 10 100 का स्क्वायर रूट 10, r अपॉन r प्लस h। एवं इधर 36 का स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट 6, 100 का स्क्वायर रूट 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8r 8h 10r, 8h इज इक्वल टू 10r माइनस 8r, 2r, h इज इक्वल टू 1/4r। इधर सॉल्व कर लो बेटा, 6r 6h क्रॉस मल्टीप्लाई करके
6h इज इक्वल टू 10r माइनस 6r, है ना। 6h इज इक्वल टू 4r, h इज इक्वल टू 4r बाई 6, 2/3r। है ना। दोनों पार्ट्स बेटा ईजी ही है, मुश्किल तो नहीं है बेटा। बस प्रॉब्लम ये सी भी एक सीगा रिड्यूसिस टू 64%, एक सीगा रिड्यूसिस बाय 64%। रिड्यूसिस टू 64% मतलब रिड्यूस होके 64% बच गई, बची हुई वैल्यू नाल सॉल्व करना है। एंड रिड्यूसिस बाय 64% मतलब रिड्यूस होके रिड्यूस होगी 64% रिड्यूस होगी। जो 64% रिड्यूस होगी तो बच कितनी गई, हमेशा बची हुई वैल्यू नाल ही क्वेश्चन सॉल्व करना बेटा। वैल्यू जो लार्ज डिक्रीज हुई है, डिक्रीज लार्ज होया तो फार्मूला ए लगेगा, जो डिक्रीज स्मॉल होया तो फार्मूला 1 माइनस 2h बाई आर वाला लगेगा। ठीक है बेटा। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 23। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। ये भी थोड़ा केयरफुली समझियो क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा या मतलब स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग है, वो तो सोल्यूशन तो सौखा है, स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, अ बॉडी हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस होंगे बेटा, स्प्रिंग दे नाल वेट मेजर किया जाता है। ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस नाल एक बॉडी अटैच करती, उसने जो बॉडी अटैच की तो स्प्रिंग बैलेंस स्ट्रैच हो गया, अपनी पोजीशन तो स्ट्रैच हो गया, है ना। कितने सेंटीमीटर स्ट्रैच हो गया, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर स्ट्रैच हो गया, स्ट्रैच होके रुक गया, है ना बेटा। दैट मीनस ये रुकूगा कदों, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन कितना होया अपने बेटा, बॉडी का वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड स्प्रिंग स्ट्रैच हो गया अपनी मेन पोजीशन तो, इस करके स्प्रिंग दे विच की आएगी रीस्टोरिंग फोर्स kx एंड एट इक्विलिब्रियम पोजीशन जी रीस्टोरिंग फोर्स है वो बॉडी के वेट नू की कर लेगी बैलेंस। रीस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला तो पता ही है ना, की फार्मूला होंगे रीस्टोरिंग फोर्स का, माइनस kx। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन रीस्टोरिंग फोर्स वेट दे इक्वल एंड ओपोजिट होएगी। रीस्टोरिंग फोर्स कितनी, माइनस kx, वेट कितना mg, माइनस का माइनस कैंसल, आ चीज़ बन जाएगी। जिन्ना वेट ज़्यादा होएगा उन्नी स्ट्रैचमेंट ज़्यादा आएगी, उन्ना एक्स ज़्यादा आएगा। एक हाले का क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन है बेटा, मैं तुम्हें फर्स्ट लाइन ही समझाई है। अ बॉडी इज़ हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस, जो असी किसी स्प्रिंग बैलेंस नाल कोई बॉडी हैंग करते हैं, बॉडी के वेट कारण वो स्प्रिंग स्ट्रैच हो जाता है ना। कितना स्ट्रैच हो गया, 2 सेंटीमीटर। जो स्प्रिंग स्ट्रैच होएगा तो स्प्रिंग दे विच की आएगी रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स आती है एफ इज इक्वल टू माइनस kx। याद है ना रीस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला। एंड एट इक्विलिब्रियम पोजीशन जो बेटा ये रुक गया, ये वेट होर नीचे जान तो रुक गया एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, उस वक्त जी रीस्टोरिंग फोर्स है वो वेट नू बैलेंस कर लेगी। रीस्टोरिंग फोर्स वेट दे की होगी इक्वल एंड ओपोजिट। रीस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला माइनस kx, माइनस ना माइनस कैंसल, ये रिजल्ट बन जाएगा। वी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन kx इज इक्वल टू mg, मीन्स x इज इक्वल टू mg बाई k। m एंड k कांस्टेंट हो गया तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g, ये मीनिंग समझे। m बॉडी का मास इट इज कांस्टेंट, k स्प्रिंग कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट खत्म करके प्रोपोर्शनलिटी बन गई, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g। ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਚਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਟ ਸਰਫੇਸ। एट सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होंगी है बेटा g, एंड स्ट्रैचमेंट कितनी आई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है। कहते अगर तुसी उन्होंने सेम बॉडी नू h हाइट कितनी थी 4800 किलोमीटर ते लै जाओ, फिर स्ट्रैचमेंट कितनी आएगी, ये फाइंड आउट करने को क्या है बेटा।
ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ g, ਸਟ੍ਰੈਚਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ ਸਪਰਿੰਗ 'ਚ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਐਟ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ g ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਟ੍ਰੈਚ ਸਪਰਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋਇਆ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਐਂਡ ਇੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਸਪਰਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੈਚਮੈਂਟ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹਾਈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਰਥ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 6400 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ, ਐਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਲਾਰਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ, ਜੀ ਡੈਸ਼ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਸਮਝ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੇਖੋ x ਤੇ g ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x2 ਬਾਈ x1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ g2 ਬਾਈ g1, ਮਤਲਬ g2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ g ਡੈਸ਼, g1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ g, ਤਾਂ g ਡੈਸ਼ ਬਾਈ g ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x2 ਬਾਈ x1। ਆਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 6400 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਨੀਚੇ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ, ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਨਾਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਰ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੋ, 6400 ਪਲੱਸ 4800 ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। x2 ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, x1 ਹੈਗਾ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ 6400 ਅਪੋਨ 00842 12 6 4 10 11 है ना। ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਉਰੋਂ x2 ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਓ, 6400 ਬਾਈ 112 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇੰਟੂ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਥੋੜਾ x2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ x2, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਹੈਂਗ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਪਰਿੰਗ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਆਏਗੀ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ। ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ 4th 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਲੋਗੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੇਟ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੇਗੀ। ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਵੇਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਤੇ ਜੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਕਸ ਜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਲਿਖ ਲਿਆ x2 ਬਾਈ x1 g2 ਬਾਈ g1, ਹੈ ਨਾ। g1 ਮਤਲਬ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਟ੍ਰੈਚਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਈਟ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਚਮੈਂਟ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਟ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਈਟ ਲਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਰਜ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਜੀ ਡੈਸ਼ ਤੇ ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਜੀ ਡੈਸ਼ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ x2 ਬਾਈ x1 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ। ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਗਏ। ਬਸ ਦੇਖੋ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, 4 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ, 4 ਕੁਐਸਚਨ ਓਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ 10% ਘੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 10% ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਜੇ 10% ਘੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਬਚ ਗਈ, 90% ਬਚ ਗਈ, 100 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ 90% ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਝ ਗਏ। ਘਟੀ ਹੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਕੇ ਜੋ ਬਚ ਗਈ ਬਚੀ ਹੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਟਾਈਪ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕੁਐਸਚਨ। Clear beta? Hope you understand very well. Thank you very much.